یہ نہیں ہے کہ جی کوئی ایئر کنڈیشن چلانے والوں کو جن کا ایک پنکھا اور ایک بلب ہے ان کو بھی 12,000 کا بل ان کو بھی آ جاتا ہے، کہاں سے دیں گے؟ اور حکمرانوں کو قطعاً کوئی پرواہ نہیں ہے۔ اس میں ہمارے مطالبات میں یہ بات بھی تھی کہ آئی پی پیز کا والا بھی سلسلہ وہ ختم کیا۔ یہ آئی پی پیز لوٹ مار رہا ہے، یعنی ایک ایسی کھلی لوٹ مار رہا ہے کہ ایک بچہ بھی کہے گا کہ یہ کیسے ہے کہ جی آپ سے ہم نہیں بھی بجلی لیں گے تب بھی آپ کو پیسے دیں گے، اونٹ کے منہ میں زیرہ۔ یہ اسی طرح کی چیزیں ہیں۔ کسی چیز کا بوجھ کم کرنا ہو نا تو جی آپ جہاز کا بوجھ کم کرنا ہے، ڈوبتے جہاز کا، تو ایک اسٹرے اٹھا کے باہر پھینک دے اور کہیں جی ہم نے بوجھ کم کر۔ بھئی یہ اب لوگوں کی گردنیں ٹوٹ گئی ہیں، کمر ٹوٹ گئی ہے، زندہ درگور آپ نے کر دیا ہے۔ آپ ان کے ساتھ مذاق کر رہے ہیں کہ 2 مہینے کے لیے 14 روپے یونٹ۔ ہم کہتے ہیں آپ یہ نہ کریں، آپ ٹیکس ختم کریں اس میں سے۔ اسٹوڈیوز میں ہمارے ساتھ موجود ہیں جماعت اسلامی کے ترجمان فرید پراچا صاحب۔ السلام علیکم فرید پراچا صاحب، کیسے ہیں سر؟ جی وعلیکم السلام، طبیعت سے ٹھیک ہے جی؟ الحمدللہ۔ پراچا صاحب، ابھی صورتحال آپ کے سامنے ہے، دوبارہ احتجاج کی کال دی گئی ہے، اب تو شٹر ڈاؤن ہڑتال کی کال دی گئی ہے، تو حکومت کے ساتھ جو پہلے معاہدہ ہوا تھا اس پر عمل درآمد میں تو ابھی کچھ دن باقی ہیں، تو ابھی کیا نوبت آ گئی ایسی؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ ہڑتال بھی اسی کا تسلسل ہے۔ 14 دن دھرنا ہوا تھا اور یہ معمولی بات نہیں ہے۔ بارشوں کا موسم تھا، حبس کا موسم، گرمی کا موسم، لوگ ملک کے مختلف حصوں سے آئے اور مسلسل 14 دن وہ بیٹھے رہے، اور اس عالم میں کہ انہوں نے کسی کو ڈسٹرب نہیں کیا، یعنی کوئی ٹریفک میں رکاوٹ نہیں ڈالی۔ مطالبے بڑے واضح تھے، وہ مطالبہ آپ کا بھی ہو سکتا ہے، میرا بھی، سب کا ہے مطالبہ کہ جی بجلی کے ظالمانہ بل آ رہے ہیں۔ کوئی جس آدمی کی جتنی آمدن ہے اس سے آمدن سے بھی کئی گنا اس کو بل آتا ہے۔ اس کی تنخواہ اگر 25,000 ہے تو بل اس کو 35,000 کا آیا ہے، کہاں سے دے گا؟ اور یہ مسلسل ہو رہا ہے۔ اور یہ نہیں ہے کہ جی کوئی ایئر کنڈیشن چلانے والوں کو جن کا ایک پنکھا اور ایک بلب ہے ان کو بھی 12,000 کا بل ان کو بھی آ جاتا ہے، کہاں سے دیں گے؟ اور حکمرانوں کو قطعاً کوئی پرواہ نہیں ہے۔ اس میں ہمارے مطالبات میں یہ بات بھی تھی کہ آئی پی پیز کا والا بھی سلسلہ وہ ختم کیا۔ یہ آئی پی پیز لوٹ مار رہا ہے، یعنی ایک ایسی کھلی لوٹ مار رہا ہے کہ ایک بچہ بھی کہے گا کہ یہ کیسے ہے کہ جی آپ سے ہم نہیں بھی بجلی لیں گے تب بھی آپ کو پیسے دیں گے۔ آپ جتنی بجلی بنا سکتے ہیں، چاہے ہم 1 یونٹ بھی نہ لیں، ہم آپ کو پیسے دیتے رہیں گے۔ راجہ صاحب، اب وہ آئی پی پیز کے ساتھ اگر معاہدوں کو چھیڑتے ہیں تو وہ پینلائز ہونے کا خدشہ ہے۔ پہلے تو جنہوں نے معاہدے کیے ہیں ان کو کٹہرے میں لائیں۔ اتنا ظالمانہ معاہدہ، قوم کو آپ نے غلام بنا دیا، نسلوں کو آپ نے تباہ کر دیا، آپ نے ہر گھر کے اندر ایک انتہائی جو بیزاری، مایوسی وہ پیدا کر دی۔ تو اسی طرح سے ان کو لایا جائے، آرٹیکل 6 کے تحت ان پر کیا جائے۔ جن افسروں نے ان کی منظوری دی ان کو، پھر اس کے بعد یہ کہ یہ تو کوئی معاہدہ نہیں ہے دنیا کے اندر، کوئی ایک مثال ہمارے حکمران پیش کر دیں کسی اور ملک نے بھی اسی طرح کا معاہدہ کیا ہے۔ اب یہ کہ اس میں جو چیزیں تھیں، معاہدے 2 طرفہ ہوتے ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ جی آپ نے پیسے دیتے چلے جانا ہے، اس لیے کہ دینے والے بھی وہ خود ہیں، لینے والے بھی وہ خود ہیں۔ اس میں مثلاً یہ تھا کہ ان کو کیپیسٹی ایک دینی ہے، اس کے مطابق آپ مثلاً جو 94 میں لگے ہیں پاور یونٹ، وہ آؤٹ ڈیٹڈ ہو چکے ہیں، وہ 15% دے رہے ہیں۔ حکومت ان سے مانگے کہ جی جتنی کیپیسٹی آپ کی تھی وہ آپ ہمیں دیں، نہیں دے سکیں گے تو معاہدہ تو ختم ہو گیا۔ تو ابھی پراچا صاحب جو جماعت اسلامی کے مطالبات ہیں، بھی آرٹیکل 6 کا آپ نے ذکر کیا، تو یہ بھی کیا آفیشیل ایک مطالبہ ہے کہ جن لوگوں نے یہ معاہدے کیے تھے تو ان پر آرٹیکل 6 کے تحت کارروائی ہو؟ جی بالکل، ان کی فہرست دی جائے، قوم کے سامنے لایا جائے، بے نقاب کیا جائے، فورنزک آڈٹ کروایا جائے۔ پھر اس کے بعد آج تاجروں کی بھی ساتھ ہم، یعنی تاجر اپنی مسائل کے لیے بھی ساتھ شٹر ڈاؤن کر رہے ہیں، اور تنگ آمد بجنگ آمد آخری مرحلے تک کون اپنی دکان بند کرتا ہے؟ لیکن یہ ہے کہ ان کو پتا ہے کہ کاروبار ہی بند ہو چکے ہیں۔ وہ ایک دن کی دکان کو بند کرنے کو اس لیے کر رہے ہیں تاکہ ان کے کاروبار چلتے رہے۔ پراچا صاحب، اس سے پہلے جو جماعت اسلامی کی جانب سے ہڑتال دی گئی 15 دن، آپ نے بتایا کہ بارش میں، سخت گرمی میں، شدید حبس میں آپ لوگ بیٹھے رہے، آپ لوگوں سے کہا گیا کہ آپ کے یہ مطالبات پورے ہوں گے۔ وہ یہ بتائیں کہ کون کون سے مطالبات کہے گئے تھے کہ پورے ہوں گے، اور کون کون سے ابھی تک ہوئے ہیں اور کون سے نہیں ہوئے؟
देखो कुछ थोड़े बहुत अमल दरामद शुरू हुआ। मसलन ये था कि हमने कहा कि बिजली की कीमतें कम करें, तो उन्होंने कहा तो हमने काम कर दी। उन्होंने वो मुतालबा कम करने वाला तो ना किया, 2 महीने के लिए पंजाब की हद तक एक रिलीफ का ऐलान किया। ये हमारा मकसूद नहीं है, हम पूरे मुल्क के लिए डिमांड करते हैं और उसके बाद मुस्तकिल करते हैं। हम ये कहते हैं कि इस पे जो टैक्सेस शामिल हैं वो किस लिए हैं। अब मसलन आपका बिल है, आपके बिल के अंदर जीएसटी भी शामिल है जी, इनकम टैक्स भी शामिल है। भाई किस चीज का, अब बिजली के आप बिल दे रहे हैं या इनकम ले रहे हैं कि जिसकी आपको इनकम टैक्स देना है, इनकम टैक्स उसमें शामिल है, उसमें जीएसटी उसमें शामिल है, कितनी और चीजें, यानी 14 किस्म के उसमें टैक्स शामिल हैं। तो हम कहते हैं ये बंद करें। टीवी का भी, पीटीवी, मतलब पीटीवी का, आप अब तो सुनने में आया था कि रेडियो का भी टैक्स डालेंगे, मस्जिदों को भी जा रहा है। उसमें गरीब आदमी जिसने कभी जिंदगी के अंदर टीवी खरीदा भी नहीं है उसको भी जा रहा है। तो ये जो चीजें हैं ना जी, अदलिया को भी सोचना चाहिए जो सुओ मोटो लेते हैं कि इससे ज्यादा धांधली क्या है, इससे ज्यादा जुल्म क्या है। तो ये हड़ताल जो है ना जी, ताजरों को, अब ताजर दोस्त एक स्कीम लाई गई थी, वो ताजर कहते हैं ये ताजर दोस्त है, ये ताजर दुश्मन है। आप लोगों को एक इस तरह से नाकाबिले अमल है कि आप उन पर रोजाना के लिहाज से, बाद कारोबारों पर रोजाना के लिहाज से 25,000 रुपया उन्हें रोजाना देना पड़ रहा है। कैसे देंगे 25,000 रुपया? अच्छा, इसी तरह सेल्स जीएसटी या सेल्स टैक्स लगा दिया जी, विद होल्डिंग टैक्स आटे पर, चावल पर, और इसी तरह से स्टेशनरी पर और बाकी चीजों पर विद होल्डिंग टैक्स और सेल्स टैक्स है उनमें शामिल कर दिया। अच्छा पराचा साहब, अभी ये बताएं, अभी जो हड़ताल होने जा रही है ये कितनी दिन रहेगी और इसकी नौयत क्या होगी और इसका क्या कहते हैं, इसकी इंटेंसिटी कितनी होगी, पूरे मुल्क में होगी? अच्छा, एक तो पूरे मुल्क में है। 16 अगस्त को ताजरों ने ये कहा था कि जी हम ये हड़ताल कर रहे हैं। हुकूमत के पास है 12 दिन मौजूद थे, बात करनी हो तो 12 दिन काफ़ी होते हैं। आप बुलाएं, आप मुज़ाकरात करें, आप पूछें, आपको नोटिफिकेशन वो कहते हैं ये पहले आप वापस लें, कोई हुकूमत का एतमाद तो कायम हो। अच्छा, उसके बाद फिर अब ये बुनियादी तौर पर आज के दिन है, लेकिन अगर मुतालबात के पूरे होने का कोई रास्ता सामने नहीं आता, फिर ये हड़ताल भी आगे गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए हो सकती है। फिर पहिया जाम का भी अपील की जा सकती है। और अपोजिशन जमातों में से किसी और जमात ने आपका साथ देने की हामी भरी है, आपकी तरफ से कोई राब्ता किया? कारकुन सारी जमातों के साथ हैं, हत्ता कि मुस्लिम लीग नून के भी कारकुन हमारे साथ। अच्छा पराचा साहब, पंजाब हुकूमत का ये दावा है कि बिजली सस्ती कर दी गई है, वफाक ने 200 यूनिट के सारिफिन को रिलीफ दी है, जबकि 500 यूनिट तक के सारिफिन को पंजाब हुकूमत रिलीफ दे रही है। तो क्या ये हुकूमत के जो दावे हैं आप इससे मुत्तफिक हैं? लेकिन वो जो मुहावरे हमारे होते हैं ना कि ऊंट के मुंह में जीरा, हाँ, ये इसी तरह की चीजें हैं। किसी चीज का बोझ कम करना हो ना तो जी आप जहाज का बोझ कम करना है, डूबते जहाज का, तो एक स्ट्रे उठा के बाहर फेंक दे और कहें जी हमने बोझ कम कर। भाई ये अब लोगों की गर्दनें टूट गई हैं, कमर टूट गई है, जिंदा दरगोर आपने कर दिया है। आप उनके साथ मजाक कर रहे हैं कि 2 महीने के लिए 14 रुपए यूनिट। हम कहते हैं आप ये न करें, आप टैक्स खत्म करें इसमें से। ये तो कर सकते हैं ना, टैक्स वसूल करने के लिए FBR मौजूद है, उसको महकमे का आपने ये आसान तरीका देखा हुआ है कि बिजली के बिलों में टैक्स पे और बिला तमीज भेज दे, जिस पे टैक्स लगता है उसको भी भेजे, जिस पे नहीं लगता उस पे भी लगे। अच्छा, जिन पे लगता है उनसे नहीं ले रहे। तो अभी पराचा साहब, ये आपकी बात दुरुस्त है कि जी टैक्सेस लग रहे हैं, महंगाई बढ़ रही है, आप दुरुस्त कह रहे हैं जी, गरीब जो अवाम है वो पिसता जा रहा है तबका। सर ये बताइएगा कि कौन से ऐसे मुतालिबात हैं इस बार कि जिन पे आप कह रहे हैं कि ये नॉन नेगोशिएबल हैं, इन पे कोई कॉम्प्रोमाइज ही नहीं होगा, ये होगा तो ही हड़ताल या एहतजाज खत्म होगा? मैं तो कोई जो ताजरों का उन्होंने भी यूनानिमसली जो अपना तय किया हुआ है वो ये है कि ये ताजर दोस्त जो स्कीम दी गई है इसको वापस लेने का नोटिफिकेशन जारी, और वो ताजर दोस्त होनी चाहिए। अच्छा, वो ताजर दुश्मन है। अच्छा, दूसरा हमारी तरफ से भी, यानी हम ये कहते हैं कि जी आप IPPs को या बिजली यूनिट तो कम करना लाजमी है, लेकिन बुनियाद ठीक करें। ये IPPs को जो कैपेसिटी के नाम पर लूट मार हो रही है ये बंद करें। ये मतलब ये है ना कि जी कितने कितने करोड़ रुपया एक महीने के अंदर या अरब रुपए एक महीने के अंदर एक यूनिट को अदा किए गए हैं, उसमें 52% यूनिट खुद हुकूमत के अपने हैं।
तो हुकूमत अपने यूनिटों पर तो ये कैपेसिटी न ले, कौम से ले रही है ना। आपने कौन से अपनी जेब में से किसी वजीर आजम ने या किसी सदर ने अपनी जेब से देनी है, वो मेरी और आपकी जेबों से निकाल के और तो प्राचा साहब, दी जो जा लोग रही। बिजली चोरी कर रहे हैं वो हुक्मरानों में भी शामिल हैं, वो बड़े बड़े नाम हैं जो बिजली चोरी कर रहे हैं, उनको कोई नहीं पूछ रहा, और उनके पैसे भी, उनकी जो बिल के पैसे हैं वो भी हमारी जेबों में से जा रहे हैं। मुफ्त बिजली उनको दी जा रही है। यहाँ पर एक पूरी अशराफिया है, मुफ्त बिजली, मुफ्त पेट्रोल, इसी तरह गैस मुफ्त मुफ्त है, एयरलाइंस। और फिर उसके बाद बड़ी बड़ी गाड़ियाँ, उनको गाड़ियाँ दी जा रही। यानी ये भी एक तरफा तमाशा है। आप यूके है, दीगर ममालिक हैं जो बहुत अमीर हैं, जिनका उन ममालिक के अंदर भी सेंट्रल पूल में गाड़ियाँ होती हैं, और किसी को ज़रूरत होती है तो वो गाड़ी उसको दी जाती है। हमारे यहाँ 90,000 गाड़ियाँ वफाकी हुकूमत के पास है, क्या? और वो 90,000 गाड़ियों का पेट्रोल जी। कौम दे रही है। वाह। और वो 90,000 गाड़ियों में बाद ऐसे भी हैं कि 18वें ग्रेड के अफसर के पास भी वो गाड़ी है कि जो गाड़ी 3 किलोमीटर 1 लीटर के अंदर चलती है, और वो ठीक है। तो मतलब और अभी राजा साहब आवाम के अभी- पास ना तो गाड़ी है, गाड़ी खरीदना भी चाहे तो इतने पैसे नहीं है, इतने महंगी टैक्सेस हैं और इतना सब कुछ है, और अगर गाड़ी है तो वो घर में खड़ी है, पेट्रोल बहुत महंगा है। नहीं, यहाँ तो मोटरसाइकिल भी बेचारा कोई नहीं ले सकता, लेकिन वफाकी मोटरसाइकिल को पेट्रोल नहीं दे सकता। अभी तो प्राचा साहब ये मुल्क में ये जो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है, आपके सामने बलूचिस्तान के जो मामलात हैं, तो वहाँ पर भी सिक्योरिटी जो एजेंसीज हैं हमारी, उनकी जानिब से भी इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस किए जा रहे हैं। जाहिर है वहाँ पर भी एक लागत तो आती है, खर्चा होता है, और फिर मईशत की सूरत हाल मुल्क की वो भी सबके सामने है। तो वज़ीर आज़म की जानिब से तो बाकायदा ऑस्टेरिटी कैंपेन का आगाज़ किया गया है। उन्होंने तो कहा है कि जी हम लोग जो ज़रूरी चीज़ें हैं वहाँ पर तो डेफिनेटली जो है पैसे वहाँ पर देंगे। बहुत ज़्यादा तशवीशनाक सूरत हाल है, खंबीर है। आप अगर उसके लिए वहाँ पे कलभूषण यादव जैसे नेटवर्क काम कर रहे हैं, और हुकूमत के पास आम आदमी से बहुत ज़्यादा मालूमात हैं। सही। अब वजीर दाखिला, जिसके पास सबसे ज़्यादा मालूमात होनी चाहिए जी। और जिसे संगीनी का एहसास होना चाहिए, वो कह रहा है कि ये तो एक ऐसा चौकी मार है। यानी लोगों की लाशें गिर रही हैं, बिल्कुल हमारी फोर्सेस की, हम लोग शहीद हो रहे हैं, और आप कह रहे हैं ये ऐसा चौकी मार है। तो फिर क्यों नहीं आपने ऐसा चौकी मार दी? आप आज कौम के साथ मजाक कर रहे हैं। कच्चे में जो कुछ हालात हुए हैं, यानी पुलिस के साथ, तो हम ये समझते हैं कि भाई सीरियस लें आप मामलात को। ये कुर्सी का खेल है, ये न खेलें। और ये कच्चे के डाकुओं कुर्सियां हैं, मुल्क के साथ है, मुल्क सलामत है तो कुर्सी सलामत है। ऐसे। आप इस चक्कर के अंदर ही हैं कि ये अदलिया का मामला, फलां कानून साजी। आप इस बुनियादी चीज़, दो बड़ी बुनियादी चीज़ें हैं। एक अमन है जो कायम करना चाहिए, और दहशतगर्दी के मामले में एक सीरियस एक्शन लेना चाहिए, और दूसरा मईशत है, मुल्क की मईशत। बिल्कुल। ये कर्जों वाली मईशत नहीं होती, ये तो तबाही है। तो प्राचा साहब अभी संजीदा इकदाम नजर नहीं आ रहे आपको वज़ीर आज़म साहब के? वही तो बता रहा था मैं आपसे, इससे पहले सवाल भी मेरा इसी से रिलेटेड था कि ऑस्टेरिटी कैंपेन उन्होंने बाकायदा उन्होंने बोला कि जी हमें अपने खर्चे कम करने पड़ेंगे तो हम करेंगे, लेकिन ये तो है, लेकिन ठीक मराद है कि कम नहीं होगी करें। गे का लफ्ज है ना, कि वो ये कौम को बताएं हमने ये किए हैं, कौन सा के क्या किया है। वो कितनी प्रोटोकॉल जब निकलते हैं 50 गाड़ियां, तो क्या वो ख़त्म कर दी हैं 50 गाड़ियां? आप इस्लामाबाद में आप शराय दस्तूर पे या वहाँ पे जो रेड जोन है वहाँ खड़े हों, तो कारवां चल रहे होते हैं, इधर से जा रहा है, थोड़ी देर बाद एक दूसरा प्रोटोकॉल। प्राचा साहब, अजीम राना साहब ने बड़ा अच्छा सवाल किया, और उसके जवाब में ये कहना चाहूँगी कि मर्रात और बाकी जो इनके बेनिफिट्स हैं वो तो बढ़ा दिए गए हैं। पता नहीं वज़ीर आज़म साहब कौन सी चीज़ कह रहे हैं कि वो कम कर देते हैं, नहीं कर देते, कोई समझ में नहीं आ रही। शायद आवाम को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश की जा रही है। बहुत शुक्रिया, आपने सुनो पाकिस्तान को वक्त दिया।